Namaskar. Hello and welcome to NCRT's live phone-in program. This is a special program, Sahyog, Guidance to Mental Well-Being of the Children. In this particular session, we are going to deal with the topic techniques to remain calm during the times of confusion. Well, we all face confusion sometime or the other. किसी ना किसी बात को लेके कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो ही जाती है, तो उस समय में हमें कैसे पेशेंट रहना है, कैसे तसल्ली रखनी है, कैसे काम होना है, इस पर हम बातचीत करेंगे. तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देने में उनको बहुत खुशी होगी. तो आप हम तक अपने सवाल पहुंचाइए. ncertofficial हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके लाइव चैट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए और हम तक पहुंचाइए. आप हमें इस वक्त देख रहे हैं PM eVidya चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक. और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्लास का टॉपिक और कौन सा सब्जेक्ट का सेशन प्रोग्राम कब आने वाला है, तो उसका टाइम टेबल, शेड्यूल और डिटेल्स सभी कुछ मौजूद है हमारी वेबसाइट पर, CIET की वेबसाइट पर, और साथ ही साथ स्वयं प्रभा की वेबसाइट पर भी. तो आप वहां जाकर भी जान सकते हैं और वो सेशन आपके लिए कब फायदेमंद है, कब आने वाला है, ये भी आप देख सकते हैं. इस सेशन पर बातचीत हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे, लेकिन आइए पहले मिल लेते हैं. हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि रेखा शेट्टी. स्वागत है मैम आपका. थैंक यू तन्वी जी. नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स. नमस्ते मैम, आपको भी. मैम है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCRT भुवनेश्वर से, और साथ ही साथ है हमारे साथ एक प्रैक्टिसिंग काउंसलर, वो है मिस्टर कान्हा चरण पौध. स्वागत है सर आपका भी. नमस्कार, वेलकम टू. नमस्कार सर. तो आइए ये जो चर्चा है हम शुरू करते हैं. एंड माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द basic question, and I want to ask it to Dr. Shetty. Ma'am, are there any symptoms or causes of confusion? Can you please explain this to me and to our viewers as well? And also, if there's some situation in which a student is confused and he or she needs to stay calm, what all he or she should do? Thank you, Tanvi. So before that, I'd like to say that regarding confusion, confusion is a symptom that creates a feeling within us as if we cannot think clearly. It shows our inability to take decision, and that means we are unable to take a decision, or we are, I can say, indecisive. And a conflicting situation or confusion are disagreements between mind and brain. And from the behavior of the students, you can know that she is confused or he is confused and not attending anything, or not attending class positively. So the symptom for confusion, what you asked, so it's like feelings are worriness, confusion feelings are worriness, and tension, tiredness, frightenness, alertness, depression, anxiousness, anger. Then there are different ways of calmness in the conflicting situation of confusion of life. They are just whenever students are in confusion, they can consult with the parents and teacher and experienced person, or to any nearer one, or to whom they like most, or on whom they have trust. So who can give, or who could give a solution at the time of confusion. If the students are hesitant to ask directly to others regarding the issue, they can ask them with different examples indirectly, which will be helpful for the students. And parents give good advice because they want best of their children. So one can work alone on the rooftop if it is setting, or one can work in the park for thinking deeply and realize the issues related with the conflict matters or confusion. So another technique is one can drink water vigorously, as sufficient water intake gives calmness to the mind. Particularly, it helps to be calm
during the tension situation or in the anxiety time. And the students can take down or jot down some of the points related to the problems or reasons for worriness and try to solve one by one with own intelligence. And they can watch cartoons also on YouTube or TV for feeling relaxed. So sometimes too many conflicting situations makes sleepy. So one can sleep for a few hours to refresh one's mind, and students has to listen the inner voice about what one should do and what actually one wants. And motivational video can give the calmness, and they can work and enjoy the nature, and they can write down in diary whether anything comes to their mind, and whatever comes to their mind they can write down in the diary, and they can involve in drawing and painting in order to be calm. And students can read only holy scripture and a novel to be very calm, and they have to think that difficult time or confusion conflict situation will not remain constant forever, so take it easy. So whatever coming, the students have to take it easy. And students, those who are theist, can chant the name of one's own liking God name and what they like most. Okay. Every time one must think positively by taking into consideration that everything is nature's creation. So enjoy accordingly, as this world is so beautiful, and patiently observe the problem and observe the family members also. If any member of the family or a students felt he or she is calm, just look at their face. Okay, so students may get strength after looking the face of the calm persons, if anybody available in the family. And students can take a long bath, if possible. Those who are prone to cold can avoid all those kind of things. And take time, take time for self-talk or self-instruction by taking the help of positive thought. And they can sit in front of the image to whom they like most, which they like most, continuously watching their faces or scenery also makes one calm. So positive thought can be developed by thinking that, like me, so many people are in this world who are facing this kind of problem, or maybe they may be in the confusion, so I should not be so confused. One should be very silent observer and silent worker, and they must have passions for anybody's for their goals also makes calm. And they can sit for writing poem, and they can concentrate on creative writing. So all this kind of techniques also can be adapted. Apart from that, also yoga factors actually works a lot. So some of yogas also they can do for being calm. ओके सर, आप हमें बता सकते हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन कब महसूस होती है? ऐसा कुछ सिचुएशन हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं जब बच्चों को लगे कि हाँ, अब वो कंफ्यूज्ड हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? देखा जाए तो पिछले जो पैंडेमिक सिचुएशन हुआ है, उसकी वजह से शुरू में हम लोगों ने क्लासेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रहा है कि पूरा टोटल स्कूल सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे होने वाला क्या है, मैं स्कूल कब जाऊंगा, मेरा पढ़ाई कब होगा। अभी तक बच्चा कॉन्फ्यूज है और समझ रहा है कि मैं ये थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे हूँ। एक पहला कंफ्यूजन। जब बच्चा क्लास में आता है, टाइम टेबल है, बच्चा उसको लिख नहीं पाता है। टीचर्स और बहुत सारे स्कूलें ऐसे होते हैं जो कि सडन लिंक भेजते हैं, ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। अगर वही टीचर या स्कूल जो कि गांव में बहुत ज्यादा है, बहुत सारे स्कूलों में जो गांव में है और बच्चों को लिंक सही तरीके से मिल नहीं पाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सुबह दिया हुआ लिंक को वो शाम को ज्वाइन करने की कोशिश करता है। इसमें एक कंफ्यूजन होता है। और देखा जाए
तो जब टीचर पढ़ाते हैं बहुत सारे वीडियोस दिखाते हैं, ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो टीचर को पढ़ाने का अच्छा तरीका आ गया। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा भी नेट में उसका प्रॉब्लम है या फिर उसका कुछ तकनीकी गड़बड़ है, मोबाइल में कमी है, तो बच्चा उसको ठीक से पढ़ नहीं पाता है और अगले क्लास में उसको वो कोरिलेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चा का पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है और वो कंफ्यूज ही रहता है। अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो जब हम क्लास करते हैं मोनोसाइड होता है, बच्चों का रिएक्शन टीचर को नहीं आ पाता है और बच्चा चाहे भी तो सवाल पूछ नहीं पाता है कम टाइम, और अगर भी पूछेगा तो वो नेटवर्क की वजह से टीचर उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और बच्चा का जो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। आते हैं हम नेक्स्ट पे, उसका जो एग्जाम है। पिछले दिनों में कुछ देखा गया कि कोई भी एग्जामिनेशन 100% ऑनलाइन या 100% ऑफलाइन नहीं हुआ है और 100% ऑनलाइन करने का तरीका हम लोगों ने अभी तक नहीं ढूंढ पाया है जो कि सही तरीके से बच्चों तक जाए। कुछ सोचते हैं कि हम इसको ऑनलाइन कर लेंगे, मल्टीपल चॉइस कर लेंगे, और कुछ सोचते हैं कि भाई हम इसको लिखेगा बच्चा, अपलोड करेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में। लेकिन एक छोटे क्लास के बच्चा के लिए लिखना और अपलोड करके एग्जाम देना थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा एग्जाम पेपर टीचर के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। उसके बाद अगर हम आते हैं तो रिजल्ट पे, तो जो रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया है, अभी तो हमारा 10th का रिजल्ट निकला नहीं है, लेकिन इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये कॉन्फ्यूजिंग सिचुएशन, बच्चा सोचता है कि मैं तो मेरा पीडब्ल्यूटी में अच्छा किया हूँ, यूनिट टेस्ट में अच्छा किया हूँ और मेरा जो प्रीबोर्ड में भी अच्छा किया हूँ, लेकिन जब ये रिजल्ट निकलेगा डेफिनेटली बच्चा का परसेंटेज कम हो जाएगा, क्योंकि जो सीबीएसई का फॉर्मूला है या जो तरीका है जिसको लेकर रिजल्ट बनाया जा रहा है वो बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा है। अगर ये फॉर्मूला बहुत पहले किया गया होता या पहले से जानकारी दी गई होती तो शायद बच्चा उसको फाइनल एग्जाम जैसा प्रस्तुति करके इसको अपियर किया होता। फिर हम देखते हैं तो स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल जब हम ऑफलाइन रहते हैं तो फेस टू फेस रहते हैं और बच्चा को हम जो नोट ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, बच्चा भी लिखता है, कोई नहीं भी लिखता है तो हम उसको बोलते हैं लिखने के लिए। अभी क्या होता है, बच्चा लिखता नहीं है, वो कन्फ्यूजिंग रहता है, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता है और घर में उसका पढ़ाई वो नहीं करता है, क्योंकि वो कन्फ्यूज हो जाता है कि टीचर बोल रहा है और जो दिखा रहा है दोनों में कभी कभी तालमेल नहीं रह पाता। तो ये जो क्लासेस के टाइम पे, रिजल्ट के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे बच्चा कंफ्यूज रहता है, इसका परिणाम अंत में जो वो स्ट्रीम सिलेक्शन करता है 10th के बाद, वो स्ट्रीम सिलेक्शन जब करता है उसमें उसको प्रॉब्लम्स होते हैं। कि ऑफलाइन में क्या होता है, 2-4 टीचर से मिलता है, उनका राय लेता है, पेरेंट्स भी उसका स्टैंडर्ड देखते हैं कि वो किसके लिए एलिजिबल है, क्या कर सकता है। बच्चा ये शेयर नहीं कर पाता है और कॉन्फ्यूज ही रहता है। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे मैम, तो बच्चा रोज हर दिन किसी ना किसी टीचर से बात करनी चाहिए। जैसा कि स्कूलों में व्यवस्था की गई है, काउंसलर्स हैं, वो काउंसलर्स अपनी ओर से जो बच्चे प्रॉब्लमेटिक हैं या जिनका कुछ परेशानी है स्कूल रिकॉर्ड से, काउंसलर्स फोन करते हैं स्कूल को, बच्चा को। लेकिन बच्चा अगर कॉन्फ्यूजन से बाहर आना चाहता है तो अपने स्कूल में जिसको वो चाहता है, जिस टीचर को या सब्जेक्ट टीचर को फोन करके उसको बात करना चाहिए, ये सबसे बड़ा हल। दूसरा है पेरेंट्स भी बच्चा का प्रॉब्लम्स को टीचर तक पहुंचाना चाहिए ताकि बच्चा वो प्रॉब्लम से उभरे और सही तरीके से पढ़ाई करे। जो हम रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का सिस्टम कर रहे हैं, वो एग्जाम का पहले अगर टीचर बता देगा, थोड़ा बच्चा को तो सीरियस होना ही पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे कि बेटा ये यूनिट टेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा सीरियस नहीं होगा। लेकिन बच्चा को बोलेंगे बेटा ये भी एग्जाम है, इसको पढ़ना है, उसको सपोर्ट करेंगे, उसका मोरालिटी को डेवलप करेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम सुनेंगे और सॉल्व करेंगे, तो बच्चा डेफिनेटली वो कंफ्यूज नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा आगे आएगा। रिगार्डिंग स्ट्रीम सिलेक्शन, अगर हम स्ट्रीम का सिलेक्शन में उसका मदद करेंगे, बच्चा अगर हमको फोन नहीं भी करता है तो अपना स्कूल से डाटा लेकर हम हर बच्चे को फोन करें कि तू क्या पढ़ना चाहता है,
जिसमें जा सकता है, तेरा ये स्ट्रॉन्ग साइड है, तेरा ये वीक साइड है, लेकिन कोशिश करेगा तो इसमें भी अच्छा कर सकता है। ये सारी बात हम बच्चा को बताएंगे। और ये बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। हर टीचर को हर दिन जितना टाइम क्लास में मिलता है उतना टाइम के अंदर वो टीचर ये बात कर सकता है, ताकि बच्चा का प्रॉब्लम हल होगा, बच्चा कंफ्यूज नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। ये जो आपने प्रॉब्लम बताई ये बहुत ही कॉमन है, और जहां तक मैं कह सकती हूँ हर बच्चा ये प्रॉब्लम फेस करता है। तो आपने बताया कि अगर टीचर एक एक बच्चे से कोऑर्डिनेट करेगा कि उनका क्या वीक पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, तो क्या ये टीचर का इनिशिएटिव होना चाहिए, या स्कूल में जो काउंसलर होते हैं उनका होना चाहिए, या इसके अलावा एक और मेथड भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक क्वेश्चनेयर होता है जिसमें बच्चों को स्ट्रीम या कुछ उनके पॉजिटिव पॉइंट्स, एबिलिटीज, स्किल्स टिक करने को कहा जाता है, उसके बेसिस पे भी उन्हें कुछ करियर ऑप्शंस मिलते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? यस मैम, यस मैम, आपका भी जो कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो कहना है कि हम क्वेश्चनेयर बनाएंगे, ठीक कराएंगे, उसको सप्लीमेंट करेगा ये सारी बातें। आपने जो बोला कि हम लोग क्वेश्चनेयर लेंगे, बिल्कुल बच्चा का डाटा हम ले लेंगे, लेकिन ऑफलाइन होता तो बच्चा हमारे पास बैठता। अभी कुछ बच्चे शर्माहट के कारण थोड़ा मार्क कम हो गया तो हमारे पास आते नहीं है। तो हमारा यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि हम उससे बात करें। काउंसलर जो है रेगुलरली बच्चों के टच में है, और बाकी जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जो सीनियर टीचर्स हैं, वो भी यहाँ से बात कर सकते हैं उनसे, तो बच्चा कन्फ्यूजन से उभर आएगा, बच्चा का जो मानसिक दबाव है वो हट जाएगा और वो सही डिसीजन ले पाएगा। आपका जो डिसीजन सही है। ओके सर, ये आपका एग्जाम्पल भी बहुत सही था, और हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये होता है, सो दिस हैपेंस ऑल द टाइम। आगे बढ़ते हैं और इसी बात पर चर्चा करते हैं। रश्मि मैम, जैसा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं that every student, almost every student faces this confusion while taking a stream in class 10th after the board exams. So can you explain what exactly should the students do for choosing a stream for their future in 11th class, and which decides their actually career? Thank you very much for your nice question. And along with the students also, parents, teachers and schools have the major responsibility, major role for this. And student cannot be confused if they will keep some points in their mind and execute it. Okay. So students can choose area of choice of their own, or area of interest and passion. As for the area of interest, whether they are capable enough, or they have ability to do that, or to opt that, they have to measure and evaluate their potentiality. That I can say that self-evaluation. So what thing you are rightly asking, that which question you are asking, that actually is known as the aptitude test for the career. So it is conducted by the teachers, and students should know their ability first. And students can talk to their parents by putting their own choice first. Parents are supposed to be with the ability and interest of their children. Sometimes it happens that parents' unfulfilled dreams are fulfilled by the children. So being parents, we have to be very careful for this. Okay, so students not be forced by the parents to opt the stream. So students need not to be compared with others also. So students can talk to parents by by putting their own choice first. And teachers also can help in collecting and analyzing relevant information by taking into consideration of the interest, abilities, personality traits, skills, values of the students. Accordingly, they can suggest for opting the stream. And guidance also required for the students who are confused, in order to render effective guidance in the selection of the
career, it is necessary to collect the information in different aspects of the students, such as physical development, level of intelligence, mental abilities, interest, and I have already said that personality characteristics, and it can be done by talking with the career counselor. And rightly, Kanaji already cited, and the students can attend career fair, and students can get career related information through the mass media and electronic media, and even in the school, career talk, career conference, and career exhibition can be conducted for the benefits of the 10th standard students. And career information through the teaching subject and sometimes published literature also can be disseminated to the students, and it can be helpful for the students. And career information through the teaching subjects, and information to like related to the career from educational abstracts, guides, monographs, and leaflets about different careers, and also the information related to the educational, professional qualifications and personal qualities, nature of work, scope for upward mobility, salary structure, everything of different careers. The school should have the career information manuals and employment news, notices from SSC and UPSC for the benefits of the students. It should be kept, and other materials such as charts, posters, etc. regarding different jobs should be kept in the school. Okay. Ma'am's session was very interesting, but because we don't have much time left, we'll have to wrap up here. But before leaving, sir, मैं आपसे कुछ एक आखिरी एडवाइस, कुछ सजेशन पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी बच्चे घर के अंदर हैं, कोरोना काल में हैं और कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है. तो 2 शब्द आप सुझाव अगर कुछ दे सके हमारे दर्शकों को तो. जरूर मैम. बच्चे अभी घर में हैं और क्लास भी कर रहे हैं, और करीब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैडम जो दिन भर मोबाइल में या लैपटॉप में लगे रहते हैं, जिससे उनका कॉन्फ्यूजन और बढ़ता है. तो उनके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा मॉर्निंग में या शाम को योगा का प्रैक्टिस करना चाहिए. अगर पॉसिबल है तो घर के अंदर या घर का आंगन में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए. थोड़ा ड्राइंग बनाइए, आर्ट कीजिए, पेड़ पौधों को देखिए, और थोड़ा कुछ कीजिए घर में. पेरेंट्स का थोड़ा हेल्प कीजिए, थोड़ा एक्टिविटी भी हो जाएगा, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से ध्यान भी हटेगा, और नेक्स्ट जो प्रिपेयर होकर क्लास में जाएंगे वो डाटा भी उनका बचा रहेगा, मोबाइल भी ठीक रहेगा, आंख को भी उनका सही रहेगा, और शरीर भी उनका स्वस्थ रहेगा. और एक बात है, जब भी कोई भी कंफ्यूजन होता है टीचर से जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि अभी टीचर दूर नहीं है. ऑफलाइन में दूर था, लेकिन ऑनलाइन में वो ऑन द स्पॉट है. तो रात को 12 बजे भी टीचर से वो बात कर सकता है अगर कोई भी कंफ्यूजन है. बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच मैम, बोथ ऑफ यू, फॉर बीइंग हियर. इतनी इंटरेस्टिंग बातों के लिए. और इस वक्त जितने भी बच्चों ने हमारा इस सेशन देखा, मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन जरूर दूर हुई होगी. धन्यवाद आप दोनों का एक बार फिर से. थैंक यू. नमस्कार. धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का भी. आपने कार्यक्रम देखा, उसे पसंद किया, अपने सवाल हम तक पहुंचाए. हम कोशिश करते हैं आपके सभी सवालों को लेने का, लेकिन अगर कुछ छूट जाता है तो हम माफी चाहते हैं और अगले सेशन में उसे लेने की कोशिश जरूर करते हैं. CIET और स्वयं प्रभा की वेबसाइट पर आप हमारा टाइम टेबल, शेड्यूल, सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो. और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए. आज के लिए हम ये सेशन यहीं खत्म करते हैं. कल फिर आएंगे नए सब्जेक्ट्स लेकर, नए टॉपिक्स लेकर, क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए. तो आप देखते रहिए NCERT ऑफिशियल, हमारा YouTube चैनल, और साथ ही साथ PM eVidya के TV चैनल्स. थैंक यू. नमस्ते. धन्यवाद.